Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our online lecture series on electrical machines. This is Muhammad Uwais, your course instructor. Welcome back, students. I hope you all had a great Eid al-Fitr with your family and friends. Now let's get back to our course. And if you remember, before Eid al-Fitr, we concluded the topic of synchronous machines. And in synchronous machines, we covered the topic of synchronous generator. And then in Ramzan, we actually covered the topic of synchronous motors. So I hope those topics are clear to you. Now is the time to cover one of the most important machines which you will find in the industry, and that is induction motor. These are one of the most commonly found motors in the industry. Okay, so it be any kind of industry, you are expected to find induction motor there. Okay, it's because of their various advantages, their various features that they provide, that they have, and which we shall cover as the course proceeds. Okay, so basically, these are very reliable, economical, and very rugged machines. Okay, and most of the times they are self-starting as well. So they find their application in areas where constant speed is required, and these days because of variable frequency drives, you are actually able to control the speed of induction motor as well. So we shall cover these topics inshallah in our upcoming lectures. So initially, in this lecture, we are going to discuss the basics of induction motor, some details about the construction of the induction machine, and the working principle. So let's start this topic. If you remember, we discussed induction machines. Okay, an introduction was given when we were actually covering the AC machinery fundamentals. There we discussed that there are two types of AC machines. One is called the synchronous machines, and the other is called the induction machine or the asynchronous machines. Why are these called asynchronous machine? This you will learn, inshallah, in this lecture or the very next lecture after this course. Basically, if you remember when we were discussing AC machinery fundamentals, we told you why this is called induction machine. As the name suggests, that there is something to do with induction. Okay, so before going into the induction machine, if you remember, in synchronous machines, you had to provide a field current. ठीक है, एक फील्ड करंट स्टूडेंट्स हमें प्रोवाइड करना पड़ता था, और उसके लिए हमने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देखी थी. इन इंडक्शन मशीन्स हमारे पास जो वोल्टेज इंड्यूस होता है रोटर के ऊपर, दैट इज एक्चुअली इंड्यूस्ड, ओके, इन द रोटर. सो it is induced in the rotor instead of being connected physically via wires, as was the case in synchronous machines. आपके पास यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सर्किट आपको यूज करना नहीं पड़ता, कोई एक्सटर्नल डीसी करंट आपको प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है इंडक्शन मोटर में, in order to have a voltage at the rotor. ठीक है, और in order to have the rotor field current. तो यहाँ पे होता क्या है हमारे पास, ठीक है, इसको इंशाल्लाह अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से वोल्टेज इंड्यूस होता है. पहले आपको सिर्फ ये बता दिए कि जैसे सिंक्रोनस मशीन में आपके पास मशीन को आप मोटर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और जनरेटर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं. हियर इट इज आल्सो पॉसिबल that the machine, this induction machine, can be used either as a motor or as a generator, but most of the time it is used as motor. Okay, so you will find induction motors most of the times instead of induction generators, due to some disadvantages and some problems associated with this machine when it is used as a generator. Okay जी. सो बेसिकली इंडक्शन मशीन की अगर हम बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन चाहे आपके पास कोई भी मशीन हो एसी मशीन में, तो यू हैव अ स्टेटर पार्ट एंड यू हैव अ रोटर पार्ट. सो जो स्टेटर है वो आपके पास ऑलमोस्ट सेम उसी तरीके से है जैसे आपके पास सिंक्रोनस मशीन में हुआ करता था. ठीक है, बट यहाँ पे जो रोटर की कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है. हम स्टेटर और रोटर को भी देखते हैं अगली स्लाइड्स के अंदर, और डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ करूंगा. ठीक है, so as far as the rotors are concerned, there are two designs of, or two possibilities, or two types of induction motor rotors. One is called the cage rotor and the other is called the wound rotor. ठीक है, केज रोटर और द स्क्विरल केज रोटर क्यों कहते हैं, अभी जब हम अगली स्लाइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाएगी. So before going into the rotor, let's first discuss the stator.
So here you can see the stator of an induction machine, students. The first figure is from Chapman, while the other figures on this slide and in our upcoming slides as well is from a video which I have taken from this YouTube channel Learn Engineering. इसके ऊपर इसको मैं पहले भी रेफर कर चुका हूँ, ठीक है। सो एनिमेशन है, कंप्लीट वीडियो है जो मैंने जिसका लिंक मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया है और मटेरियल साइटेशन में भी, और ये आपको अवेलेबल होगी LMS के ऊपर भी, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो बिकॉज वी डू नॉट हैव unfortunately the machine available at my home. It was available in the university. If we had physical classes then मैं आपको वो open करके भी दिखा सकता था, ठीक है। Unfortunately this is not the case, so we have to use this video tool. Okay, so I'm thankful to this channel क्योंकि it is because of this channel कि मैं आपको ये figures दिखा सकता हूँ और ये video भी आपके साथ share करूँगा। So होता क्या है stator में? Basically stator consists of 3 coil windings which are placed inside the slots, ठीक है। कौन सी स्लॉट्स? ये आपको स्लॉट्स यहाँ पे नजर आ रही है, आप देख सकते हैं इस तरीके की आपके पास स्लॉट्स होती हैं और इन स्लॉट्स के अंदर आप बेसिकली ये जो आपके पास 3 कॉइल वाइंडिंग है इसको आप प्लेस करते हैं और फिर होता क्या है कि आप यहाँ पे एक सेट ऑफ 3 फेज करंट इज अप्लाइड और जिसकी वजह से होता क्या है कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, कहाँ पर? स्टेटर में, ठीक है। और दैट द स्पीड ऑफ दैट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द सिंक्रोनस स्पीड, जिसका रिलेशन हम पहले भी देख चुके हैं, विच इज गिवन बाय 120 FE अपॉन P, ठीक है। ये रिलेशनशिप हमने कहाँ देखा था स्टूडेंट्स? हमने AC मशीन फंडामेंटल्स में भी देखा था और हमने सिंक्रोनस मशीन्स के अंदर भी देखा था। और बेसिकली ये जो स्लॉट्स आपको नजर आ रही हैं, these are actually made by stacking highly permeable laminations, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इनको स्टैक किया हुआ लैमिनेशन है, बड़ी थिन थिन लैमिनेशन है और इनको हमने स्टैक करके प्लेस कर दिया इनसाइड द फ्रेम, ठीक है। ये जो फ्रेम आपको नजर आ रहा है कास्ट आयरन का आपको ये बना हुआ होता है, इसमें हमने ये प्लेस कर दिया। सो आई होप इससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि स्टेटर किस तरीके से होता है एक इंडक्शन मशीन के अंदर। चलिए पहले डिजाइन को डिस्कस करते हैं रोटर के, विच इज कॉल्ड द केज रोटर और द स्क्विरल केज रोटर। इसमें क्या होता है कि वी हैव कंडक्टर बार्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ बार्स एंड विच आर एक्चुअली placed inside or they are actually carved in the face of the rotor and these are shorted at either end by large shorting rings. shorting rings भी कहते हैं इन्हें, हम end rings भी कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से कहा जाता है। सो जब इन्हें आप शॉर्ट करते थे तो होता क्या है कि आपके पास ये जो कंडक्टर्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं इन्हीं में एक्चुअली वो इंडक्शन का प्रिंसिपल होने, वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड इन दीज बार्स because you have a stator in which a three-phase magnetic field has been applied, or you have magnetic field is not applied, you have applied a three-phase current और उसकी वजह से एक rotating magnetic field produce हो गई है। and by electromagnetic law of electromagnetic induction, अब आपके पास एक time varying magnetic field है, उसमें अगर आपने कंडक्टर को प्लेस कर दिया तो क्या होगा? एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वो वोल्टेज इंड्यूस होगा इन कंडक्टर्स में, इन कंडक्टर बार्स में, और चूंकि शॉर्ट किए हुए हमने तो करंट विल स्टार्ट टू फ्लो and it is because of this force which this force is by the way also called the Lorentz force, ठीक है। और हम इस फोर्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में AC मशीनरी फंडामेंटल्स में जब हम मोटर्स को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। and it is because of this force that we actually are able to produce a torque, ठीक है। जब फोर्स अप्लाई होगी तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। and because of that torque production motor will start to rotate, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इसका एक दूसरा यहाँ पे एक फिगर दिखा दूं यहाँ पे। ये एक्चुअली व्हाट इज दिस इज एक्चुअली एन इंसुलेटेड आयरन कोर लैमिना जिसके अंदर एक्चुअली प्लेस किया हुआ है हमने अपने इन कंडक्टर्स को। ये क्यों किया जाता है बेसिकली, ये कोर लैमिना क्यों रखा हुआ है हमने? दिस एक्चुअली असिस्ट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। क्योंकि आपके पास एयर गैप है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को असिस्ट करने के लिए भी यूज होता है, और दूसरा ये बेसिकली इट इंश्योर्स दैट एडी करंट इज मिनिमम। इसका डिजाइन कैसे होता है मैं आपको अगली स्लाइड पर दिखाता हूँ। Why is this called the squirrel cage motor by the way, ठीक है, और squirrel cage rotor? क्योंकि अगर आप इसे देखें तो the bars they actually look like the exercise wheels, जिसके ऊपर आपको एक गुलहरी को दौड़ते हुए आपने शायद कोई वीडियो देखी भी होगी यकीनन। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ दो एक्चुअल मशीन्स भी दिखा रहा हूँ जो कि squirrel cage डिजाइन के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। सो हम इनको मजीद देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। So here again I'm referring to the same video, इसमें आपको ज़्यादा थोड़ा सा क्लियरली नज़र आ रहा होगा because this is an animation, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास रोटर बार्स हैं और आपने इनको शॉर्ट किया हुआ है। अब होता क्या है आपके पास कि आप इनको कवर करते हैं
कैसे? बाय यूजिंग इंसुलेटेड आयरन कोर लैमिना, वो आप पैक कर देते हैं इनसाइड द रोटर, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली कवरिंग आ जाती है। आपको इस तरीके से रोटर बार्स अगर आप ओपन करेंगे तो ऐसे नजर नहीं आ रही होंगी, बल्कि आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रही होंगी। मैं आपको एक्चुअली भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से जब ये प्लेस हो जाएंगी तो कैसे नजर आ रही होंगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दे विल लुक लाइक दिस, ठीक है। अगर आप किसी इंडक्शन मशीन को खोलें, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, प्रैक्टिकल जो एक इंडक्शन मोटर को ओपन किया जा रहा है, तो यू विल एग्जैक्टली फाइंड इट लाइक दिस, ठीक है। और इसका फायदा क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि इट इंश्योर्स दैट एडी करंट इज आल्सो मिनिमम, अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो एड इन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट स्क्विरल केज रोटर डिजाइन, ठीक है। इस ये स्क्विरल केज रोटर का जो डिजाइन है बेसिकली बहुत ही सिंपल है और बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है। इसके अंदर यू डू नॉट नीड एनी परमानेंट मैग्नेट, यू डू नॉट नीड एनी ब्रशेस, ब्रशेस की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगली जो मशीन हम देखने जा रहे हैं उसमें आपके पास बेसिकली स्लिप रिंग्स होंगी और ब्रशेस होंगे। यहाँ पे कोई ब्रशेस की जरूरत नहीं है। डिजाइन भी बहुत सिंपल है और काफी रगिड कंस्ट्रक्शन है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से स्क्विरल केज का जो डिजाइन है वो ज्यादा कॉमनली यूज होता है एज कम्पेयर टू द अदर डिजाइन। जो अदर डिजाइन है चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। So the other type of rotor is called the wound rotor, which has been shown here. Again, the reference is from the same channel, Learn Engineering. This is another video जिसका reference मैंने आपको provide कर दिया material citation में, and the rights of the video actually they remain with the channel. So kindly have a look at this video as well. It's a very interesting video जो मैं LMS के ऊपर भी आपको upload कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि हमें इससे पहले कि हम डिस्कस करेंगे है क्या इसमें, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, जो हमारे पास स्क्विरल के जो मोटर्स होती हैं उनमें हमारे पास बेसिकली जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। दे डू नॉट ऑफर वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क। सो जिन एप्लीकेशन में हमें इनिशियली हैवी टॉर्क चाहिए होते हैं, मिसाल के तौर पे हॉइस्ट हैं, आपके पास एलिवेटर्स हैं, क्रेन्स हैं, वहां पे आपको ऐसी मशीन की जरूरत होती है दैट ऑफर्स अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो देयर एक्चुअली द वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर इज more commonly used and it is more suitable. Why? Because it offers high starting torque. Why does it offer high starting torque? ये चीज अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक यहाँ पे बेसिक शुरू में हम कुछ थोड़ी बात करेंगे और बाद में जब इंशाल्लाह हम टॉर्क करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे इस मोटर की तो वहां पे हम दोबारा डिटेल में देखेंगे। सो वाउंड रोटर के अंदर जो आपके पास रोटर होता है, here you do not have bars. तो instead of bars what you have a three phase winding, ठीक है। you have a three coil winding and it is actually a set of three phase winding और mirror image होता है आपके पास जो स्टेटर वाइंडिंग में है, ठीक है। in these the three phases of rotor windings are usually Y connected, ठीक है। Y connected होती हैं and the ends of these rotor wires are actually tied to slip rings। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें slip rings यूज करनी पड़ती हैं और ये स्लिप रिंग्स कहाँ मिलेंगे आपको? रोटर शाफ्ट के ऊपर। और इन स्लिप रिंग्स के साथ आपके पास बेसिकली ब्रशेस अवेलेबल हैं, ठीक है। सो द रोटर वाइंडिंग्स आर एक्चुअली शॉर्टेड थ्रू द ब्रशेस राइडिंग ऑन दीज स्लिप रिंग्स। ओके, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इसका एडवांटेज क्या होता है आपके पास? इसका एडवांटेज जो है वो मैं आपको अगली स्लाइड में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूं कि बेसिकली आपको थ्री फेज वाइंडिंग है जो आपको इन स्लॉट्स के अंदर प्लेस करना होता है, ठीक है। तो जो एडवांटेज है जो हमें यहाँ मिलने जा रहा है उसको डिस्कस करते हैं, चलिए अगली स्लाइड के ऊपर। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है कि यहाँ पे आपके पास रोटर बार्स नहीं होती जैसे वहां पे होती थी। यहाँ पे आपके पास वायर्स होती हैं जिनको आप प्लेस करते हैं इनसाइड दिस अगेन लेमिनेटेड, ठीक है। ये आपके पास स्टैक्स हैं आपके पास जिसके अंदर आप स्लॉट्स बनी हुई और उसके अंदर आप बाइंडिंग अपनी इंसर्ट कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, वाउंड रोटर की अगर हम बात करते हैं, जो एडवांटेज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा था वो ये था कि आपके पास जो इनका रोटर करंट होता है इट इज एक्सेसिबल एट द ब्रशेस। इस ब्रशेस एंड के ऊपर आपके पास इस करंट को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और हम इनको एग्जामिन कर सकते हैं और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंसेस को इंसर्ट कर सकते हैं। सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस कैन बी इंसर्टेड इनटू द रोटर सर्किट, ठीक है। और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आगे चल के हम देखेंगे। बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ दिस वी विल बी एबल टू एक्चुअली अचीव हायर टॉर्क्स, ठीक है। इसके जरिए से हम जो टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंडक्शन मोटर की उसको हम वेरी कर सकेंगे। बट प्लीज रिमेंबर दैट दीज मशीन्स आर रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव देन केज इंडक्शन मोटर्स। और इनके एक डिसएडवांटेजेस भी हैं जो एसोसिएटेड है इनके साथ। वो क्या है आपके पास
कि मेंटेनेंस आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे ब्रशेज़ हैं, स्लिप रिंग्स हैं, एंड जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी-सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यही वजह है कि ये थोड़ी-सी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। लेकिन कुछ जो इनके एडवांटेजेस हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क के, उनकी वजह से ये फिर भी आपको एलिवेटर्स, होइस्ट और क्रेन्स वगैरह में यूज़ होती हुई नज़र आएँगी। ठीक है? आई होप दिस इज़ क्लियर। These are again some figures from the real machines, and this is from the book. You see, these are not very clear. यही वजह है कि I had to refer to that video, for which I'm thankful to the channel. ठीक है, so please make sure कि आप वो वीडियो जरूर देखें, उससे एक आपको अच्छा आइडिया होगा कि इंडक्शन मोटर किस तरीके से काम करती है, apart from the construction features. So here is the summary, students, of what we discussed on the previous slides. Everything is available in writing, so you can simply pause the video and read this out. I want to be spending time on that because we have already discussed it on the previous slides. So please remember that this type of machine offers a higher starting torque, but at the expense of more maintenance and repair cost, and also the initial cost of the machine. Okay, these are more costly machines, and this is why most of the machines are basically squirrel cage machines. ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि अब आपको कंस्ट्रक्शन की जो फीचर्स हैं इंडक्शन मशीन के वो पता चल चुके हैं. वी हैव डिस्कस द स्टेटर, वी हैव आल्सो डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर दैट कम विद एन इंडक्शन मशीन. नाउ इट्स द टाइम टू डिस्कस अबाउट द टॉर्क. ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं कि टॉर्क किस तरीके से प्रोड्यूस होता है एक इंडक्शन मशीन के अंदर. देखिए, हमारे पास जब हमने पीछे स्टेटर डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि स्टेटर में हमारे पास वी हैव अ 3 कॉइल वाइंडिंग, और वो स्लॉट्स में आपने प्लेस इंसर्ट की हुई है. अब आप करते क्या हैं कि स्टेटर के ऊपर यू अप्लाई सम 3 फेज करंट. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट 3 फेज करंट फ्लोइंग इनटू 3 फेज वाइंडिंग, व्हाट हैपेंस इज दैट वी हैव अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कंटिन्यूसली रोटेट कर रही होती है एट अ स्पीड विच इज गिवन बाय द सिंक्रोनस स्पीड, जिसका रिलेशन मैंने आपको वहां पे भी बताया था. एंड बिकॉज ऑफ दिस गिवन कंस्ट्रक्शन वी हैव इट दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, और यहाँ पे व्हाट इज पी स्टूडेंट्स? पी इज द नंबर ऑफ पोल्स. अब होता क्या है कि हमारे पास, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्विरल केज रोटर. होता क्या है कि वोल्टेज गेट्स इंड्यूस्ड इन द रोटर बार. अब ये जो वोल्टेज की जो इक्वेशन है ना, ये हमने पहले भी डिस्कस की थी. अब मैं दोबारा आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपको पता हो जानी चाहिए स्टूडेंट्स अब तक. ठीक है, सो दिस इंड्यूस वोल्टेज इज गिवन बाय दिस इक्वेशंस. इंड्यूस इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L. सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेलोसिटी है ना, दिस वेलोसिटी इज एक्चुअली द रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बार रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, कि जो जो आप जो कंडक्टर बार की हम बात कर रहे हैं उसकी क्या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड. सो इट इज रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, इट्स नॉट अ टेंजेंशियल वेलोसिटी, इट इज द relative velocity. And because of this relative velocity और relative motion, आपके पास होता क्या है कि, and it is this relative motion of the rotor compared to the stator magnetic field. यानी relative motion की जो हम बात करें वो किससे? रोटर की compared to the stator magnetic field. एक रोटर की बार्स है और दूसरा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कहाँ पर है? स्टेटर के ऊपर है, और वो एयर गैप से होते हुए आपके पास रोटर में लिंक हो रही होगी. एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिव मोशन क्या हमारे पास वोल्टेज इंड्यूस हो रहा होगा रोटर बार में. अगर ये रिलेटिव मोशन आपके पास जीरो हो जाए तो उस केस में क्या होगा? आपके पास इंड्यूस वोल्टेज विल बी इक्वल टू जीरो. ऑल्दो द रोटर विल बी मूविंग बट इंड्यूस वोल्टेज विल बी इक्वल टू जीरो. वैसे तो एक डिस्कशन आगे का स्टूडेंट जो हमें करना है, बट यहाँ पे मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ. देखिए, आपके पास रोटेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट करी एट द स्पीड ऑफ एन सिंक्रोनस. ठीक है, नाउ लेट्स सपोज अगर आपके पास यहाँ पे जो रोटर है अगर वो भी एन सिंक्रोनस के ऊपर रोटेट करना शुरू कर देगा, तो कैन यू फिगर आउट व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बार विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड? डू यू नो द आंसर? आई थिंक यू शुड. दैट रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो. क्यों? क्योंकि दोनों सेम स्पीड के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको फील नहीं होगा. इट्स लाइक जो फिजिक्स में आपने एग्जांपल पढ़ी होगी अपनी स्कूल के अंदर भी, कि इफ यू हैव टू कंटिन्यूसली टू कार्स मूविंग एट द सेम स्पीड और टू बसेस मूविंग एट द सेम स्पीड, तो अगर आप एक उसकी छत के ऊपर एक बस की छत के ऊपर है और दूसरी
बस जो बिल्कुल पैरेलल चल रही सेम स्पीड के ऊपर एग्जैक्टली, तो अगर आप वहां पे कदम रख के दूसरी बस में जाएंगे, दूसरी बस की छत के ऊपर, यू वॉन्ट फील एनीथिंग, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल स्टेशनरी है. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन विच विल आल्सो बी एप्लीकेबल हियर. सो दिस मीन्स कि आपके पास you need to have a relative motion in order to have this voltage induced. So in the previous slide, we discussed that it's the relative motion of the rotor compared to the stator magnetic field that produces the induced voltage in the rotor bar. Here you can see the rotor bars. ठीक है, और हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास इंडक्शन किस तरीके से होने जा रही है और इंडक्शन होने के बाद क्या होने जा रहा है. वी हैव अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाना है कहाँ पर, रोटर बार्स के ऊपर. अच्छा जी, अब हमें क्या करना है कि वेलोसिटी अगर हम निकालें अपर रोटर बार्स की जो हमें यहाँ नजर आ रही है relative to the magnetic field, you will see that this relative velocity is to the right. ठीक है, ये डिस्कशन हमने पीछे किया था जब हम मशीन एसी मशीन फंडामेंटल्स को डिस्कस कर रहे हैं. प्लीज रिमेंबर दिस इज द relative motion, relative velocity. अब अगर हम V क्रॉस B अप्लाई करते हैं in order to find out the induced voltage, तो you will see that induced voltage is out of the page. ठीक है, on the upper rotor bars. अगर नीचे आप देखेंगे तो you will see that this will be actually into the page. इसकी वजह से क्या होगा कि basically you will have current flowing out of the upper bars into the lower bars. ओके, अब हो क्या रहा है कि आपके पास जो ये रोटर बार्स हैं, ये जो रोटर है वो आपके पास बाय नेचर इट इज इंडक्टिव. ठीक है, सो इंडक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, तो आपके पास जो पीक करंट होगा दैट विल एक्चुअली बी लैगिंग द वोल्टेज. ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो करंट यहाँ बन रहा है इट इज लैगिंग द इंड्यूस्ड वोल्टेज. ठीक है, okay, now because of this current flowing into the rotor, you will have the you will have another magnetic field that will be the magnetic field of the rotor given by BR. ठीक है, ये कंसेप्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं. अब क्या होगा कि आपके पास जो BR बनी है विच इज 90 डिग्री लैगिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, तो अब BR है आपके पास और BS है. इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में आपके पास एक न्यू रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी विच विल बी गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ these magnetic fields and this will be B net. ठीक है, और इसी B net के साथ आपके पास जो न्यू वोल्टेज होगा जो आपके पास रोटर में इंड्यूस हो गया है, अब दिस इज द न्यू वोल्टेज. ठीक है, दिस इज गिवन बाय ER. ओके, अब क्या है, मेरे पास दो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, BR है और BS है, या आप चाहें तो BR और B net देखें. तो नाउ आई कैन राइट डाउन द इक्वेशन फॉर टॉर्क. ठीक है, ये वही रिलेशन है जो पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं, एंड इंड्यूस्ड टॉर्क इज गिवन बाय K BR vector product of BR and BS. What is K? K is my machine constant. ठीक है, and if you see in this figure BR cross BS, so BR cross BS अगर हम यहाँ से अप्लाई करेंगे तो this is clear that the torque induced will be counter clockwise. कैसे हम देखते हैं, राइट हैंड रूल यूज करें, BR से BS की तरफ आए तो you will see that your fingers are curling in the direction of the in counter clockwise direction. ठीक है, so this is how torque is produced. In this case the torque is produced in counterclockwise direction. Okay, now there is another important concept जो कि ऑलरेडी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोटर की जो आपके पास स्पीड है ना वो इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है. किस मोटर में हम किस चीज की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द रोटर. ठीक है, कि जब हमने सिंक्रोनस मशीन में बात की थी तो हमने कहा था कि जो रोटर की स्पीड है दिस विल बी सेम एज द स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और द सिंक्रोनस स्पीड. ठीक है, सो एन रोटर वाज इक्वल टू एन सिंक्रोनस. लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पीछे कंसेप्ट देखे कि रिलेटिव मोशन के ऊपर बेस्ड है वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है. सो इफ देयर इज नो रेलेवेंट relative motion, if the two speeds are exactly the same, the speed of the rotor magnetic field and the speed of the rotor, then आपके पास होने क्या जा रहा है, उस केस में आपके पास induced voltage will be equal to zero. ठीक है, क्योंकि रोटर बार्स विल बी स्टेशनरी relative to the magnetic field although they will be rotating. ठीक है, इनिशियली अगर हम कहें but they will be stationary relative to the magnetic field and there will be no induced voltage. ठीक है, अब जब आपके पास induced voltage ही जीरो हो जाएगा तो आपके पास रोटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी. क्यों, क्योंकि BR was dependent on the current flowing into the rotor and if there is no current there is no rotor magnetic field. और जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं रही तो आपके पास क्या होगा, इंड्यूस्ड टॉर्क विल बी जीरो. तो अगर समहाउ आपने रोटर को रोटेट कर ही दिया है बाय क्या कहते हैं, एंड इट इज रोटेटिंग एट द सिंक्रोनस स्पीड,
तो इफेक्ट क्या होगा कि रोटर वुड इवेंचुअली स्लो डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन लॉसेस, क्योंकि इंड्यूस टॉर्क नहीं है, अब आपके पास टॉर्क कोई इंड्यूस नहीं हो रहा है, एंड रोटर विल स्लो डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्रिक्शन लॉसेस। देयरफॉर यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर रन नहीं कर सकती। It can never exactly reach the synchronous speed. It can run near the synchronous speed, but it can never exactly reach the synchronous speed. Now, because of this concept, we have another important concept which is called the slip. ठीक है, स्लिप क्या चीज होती है इसको डिस्कस करते हैं हम अगली स्लाइड पे। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है रोटर बार में, वो किसके ऊपर डिपेंड करे? बेसिकली वो डिपेंड करे ऑन द स्पीड ऑफ रोटर रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब चूंकि बिहेवियर की जब हम बात करते हैं इंडक्शन मशीन की, वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है? वो रोटर वोल्टेज के ऊपर और करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, करंट तभी होगा जब वोल्टेज इंड्यूस होना है। ठीक है, so therefore it is more logical to talk about this relative speed। ठीक है, कि relative speed की टर्म्स में हम बात करते हैं। तो जब हम यहाँ पे relative speed की बात करते हैं, दो टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम हमेशा यूज कर रहे होंगे इंडक्शन मशीन के अंदर। उनमें से जो आपके पास पहली टर्म है, दैट इज कॉल्ड द स्लिप स्पीड। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड। यानी वो कितना डिफरेंस है बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, so this is given by n slip, or the slip speed is given by n synchronous minus nm. Synchronous speed will always be greater than the what is nm? Nm is the speed at which the rotor is rotating, or the mechanical shaft of the motor। ठीक है, मैकेनिकल शाफ्ट आपके ऊपर आपके पास रोटर ही है। ठीक है, so this is the first term, the slip speed। let's discuss the other term। सो स्टूडेंट स्लिप स्पीड हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरी जो टर्म है दैट इज इटसेल्फ स्लिप, एंड दिस इज डिफाइंड एज द रिलेटिव स्पीड एक्सप्रेस्ड ऑन अ पर यूनिट और अ परसेंटेज बेसिस। क्या मतलब है जी इसका? तो स्लिप इज एक्चुअली गिवन बाय द रेशियो ऑफ एन स्लिप डिवाइडेड बाय द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, एंड एन स्लिप इज नथिंग बट एन सिंक्रोनस माइनस एन एम। जैसे हम वोल्टेज रेगुलेशन देखते थे तो ये समझ लीजिए ये भी बिल्कुल इसी टाइप का कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास व्हाट इज एन एम? एन एम इज द स्पीड एट विच द रोटर इज रोटेटिंग। तो आप देख सकते हैं एस की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है। क्या एस की वैल्यू आपके पास, अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, 1 का मतलब क्या है कि एन एम इज इक्वल टू 0, विच मीन्स द रोटर इज नॉट रोटेटिंग एट ऑल। ठीक है, सो आपके पास एन सिंक्रोनस विल कैंसिल आउट ईच अदर, एंड एस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात नहीं करता। और अगर हम मिनिमम की बात करें तो क्या हो सकता है? मिनिमम कब होगा? इफ द रोटर इज रोटेटिंग एट द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, सो अगर इफ nm is equal to n synchronous, they will cancel out each other, and then s will be equal to 0। ठीक है, here remember this relation is in terms of rpm। आप चाहें तो इसे in terms of रेडियन पर सेकंड भी लिख सकते हैं, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं, you will get the same answer। So whether you use rpm or you use radian per second, the answer will be same for the slip। ये वो कंसेप्ट है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि एस की वैल्यू हमारे पास मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1। प्रैक्टिकली जो आपके पास होती है इट लाइज बिटवीन द टू। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास स्पीड होती है वो ना 0 होती है ना वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है, इनफैक्ट इनके दरमियान लाई कर रही होती है। ठीक है, और ऑल्सो आप चाहे तो मैकेनिकल स्पीड ऑफ द रोटर को आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड एंड स्लिप। ठीक है, सो आप देख सकते हैं दिस इज द मैकेनिकल स्पीड एट विच द रोटर इज रोटेटिंग। अगर आपको स्लिप मालूम हो और synchronous speed मालूम हो तो you can find out the value of the mechanical speed as well। This is in rpm while the other relationship is in radian per second। देखें स्टूडेंट्स, जो इंडक्शन मशीन होती है इसको आमतौर पे एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी आपके पास क्या होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे भी आपके पास यही हो रहा है कि वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है कहाँ पर? रोटर में, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तभी इसको हम रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। बट आपको मालूम है कि ट्रांसफार्मर में देयर इज नो चेंज ऑन द सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी, देयर इज नो चेंज इन द सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी, सो द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी दे रिमेन द सेम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी प्राइमरी फ्रीक्वेंसी जरूरी नहीं कि हमेशा सेम हो। ठीक है, इनफैक्ट सेम होती नहीं है, एंड सो द रोटर फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली गिवन बाय दिस रिलेशनशिप।
एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ ई। एफ ई कौन सी है? जो आपके पास स्टेटर के ऊपर जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है एसी, उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो यू सी नाउ दिस रोटर frequency is actually depending on the slip as well, ठीक है। and this slip is actually nothing but n synchronous minus nm upon n synchronous। तो ये वो पॉइंट है जो आपके पास डिफरेंट है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी आपके पास इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम एज दैट ऑफ द स्टेटर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इस इक्वेशन में आप पुट कर दें, ठीक है, इस रिलेशनशिप को इन द डिनोमिनेटर ओनली। आप नहीं करना चाहते तो ना करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इसको मजीद सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। So if I put this relationship into this equation only in the denominator, this will be simplified to this equation, ठीक है। हमने क्या किया है, न्यूमरेटर में नहीं प्लेस किया, सिर्फ डिनोमिनेटर में प्लेस कर दिया। So then you can see Fe and Fe will cancel out each other, and finally you will have this expression for rotor frequency, ठीक है। So you are able to find out the rotor frequency if you know the synchronous speed and also the speed at which the rotor is rotating, or you can see, or you can say that this is n slip, ठीक है। n slip भी होता है n synchronous minus nm। Okay students, before we conclude the lecture for today, let's solve this example। इस एग्जाम्पल को करने के बाद आपके कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू slip and slip speed। So the data is given to us. We have a 208 volt, 10 horsepower, 4 pole, 60 hertz Y connected induction machine, and it has a full load slip of 5%। S की वैल्यू आपके पास 5% है, which is 5 upon 100, ठीक है, यानी 0.05 स्लिप की वैल्यू आपको गिवन है। and we have to find out the synchronous speed of this motor in part A, and in part B we have to find out the rotor speed of this motor, ठीक है। रिमेंबर ये दोनों आप बगैर देखे बहुत बहुत आसानी से डायरेक्टली बगैर देखे तो नहीं, ऑब्वियसली यू हैव टू यूज अ फार्मूला, बड़ी आसानी के साथ आप ये दोनों पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, विच इज सिंक्रोनस स्पीड, और ये इक्वेशन हम कई बार यूज कर चुके हैं। जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, ठीक है, फ्रॉम द क्वेश्चन, एंड यू विल गेट योर सिंक्रोनस स्पीड 1800 आरपीएम। अच्छा जी, अब हमें क्या है, हमें रोटर स्पीड निकालनी है एट रेटेड लोड। स्लिप है 5%। 5% का मतलब ये बेसिकली, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास जो रोटर की स्पीड है वो आपके पास समवेयर अराउंड 95% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड होने जा रही है, ठीक है, 95%। तो इसको हम एक्चुअली निकालने के लिए हम इसका रिलेशन यूज कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप इज गिवन बाय दिस। सो nm इज इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू एन सिंक्रोनस। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक मिस्टेक है जो बुक में हुई हुई है, मैं करेक्ट कर दूं। दिस इज नॉट 0.95, दिस वैल्यू एज इज एक्चुअली इक्वल टू 0.05, ठीक है, स्लिप की वैल्यू है हमारे पास। और इनफैक्ट जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे, सो 1 माइनस 0.05 करेंगे आप, so then your answer will come out to be 0.95, ठीक है। और जब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, you will see that your answer is 1710 revolution per minute, ठीक है। So using this relationship we are able to find out the speed at which the rotor is rotating। Remember, it is not possible for the rotor to rotate at exactly the same speed। It can come as close as possible, but it won't be able to actually reach this speed। Okay, now the rotor frequency of the motor can be simply found out using the relationship which we discussed previously। Fr is simply equal to S into Fe। Fe हमें मालूम है, S हमें मालूम है, but just simply you have to plug in the values and you will see that you have your answer with you। Apart from this relationship, you can also use this alternate relationship as well। So you are not bounded to use any certain relationship, you can use any valid relationship, ठीक है। So you see the answer comes out to be 3 hertz। In part D, we have to find out the what is the shaft torque of this motor at the rated load, ठीक है। So shaft के ऊपर क्या torque हमें required है, उसको हम identify करते हैं। For that we have to use a relationship जिसको हम कोर्स के शुरू ही से यूज करते आ रहे हैं। Let's have a look, and that is simply torque load is equal to power out divided by omega, or simply power is equal to torque into omega, ठीक है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि we will be using this again and again। And now here we have the output power, ठीक है, it is in terms of horsepower, you have to convert it into watts। Omega m we already know it's 1710 rpm, sorry this is nm, we have to convert it into omega m, यानी कि हमें इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। So let's do that।
once you do that, once you use these relationship, you will be able to find out the torque. ठीक है? So students, that's it for today. Inshallah, I see you in our next online lecture. Till then, it's Mohammed who is signing off. Allah Hafiz.